Take not thy Holy Spirit from me. He can take everything that I've got. He can strip me of everything I've got. Leave in me but the clothing to cover my body. Leave in me but the shoes on my feet. And I'm willing to go out there and live on bread and water the rest of my life. So help me, God. I'll preach it if I have to preach it from the street corner. But take not thy Holy Spirit from me. ये पवित्र आत्मा के संग दोस्ती है, उसके संग निकटता का संबंध है। There's more, my friend, when it comes to the mighty third person of Trinity, than the manifestation of His power. Then the gifts of the Spirit, more than the healing of the physical. There is a communion, there's a fellowship. The one who takes the loneliness out of your life. You can trust Him. Jesus trusted Him. And He knew Him better than I've ever known Him. And I feel that if Jesus could trust Him, surely I can trust Him. I can trust Him to lead me. I can trust Him to guide me. I can trust Him to protect me and to overshadow me with His divine presence. यहाँ मिस कुलमन साफ कह रही हैं कि जब यीशु पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकता है, जब यीशु पवित्र आत्मा में निर्भर हो सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, उसकी सहायता लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हमें खुद की पावर, खुद की स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तब परमेश्वर खुद हमें बैक कर रहा होता है। सो वी नीड dependency on the Holy Spirit. Wow. One day I just looked up and said, "Wonderful Jesus, I don't have a thing. Not a thing. But if you can take nothing and use it, I offer you that nothing. I know I love you. All I can give you is my love. I'll give you every ounce of strength in my body. That's all I have to give you. To this very hour, I have never forgotten for whence I've come. There isn't a day of my life that I don't pray that same prayer and mean it with all of my heart. All I have is my love. If you can use it, take it. I die 1,000 deaths. All you see is the white dress. All you see is this. Don't another person try to describe it. Don't. Then I know that's all you've seen. I die 1,000 deaths before I walk out on a platform. I don't care where it is. I don't care how small or how large the auditorium or how the size of the crowd. I die 1,000 deaths. मैं 1000 बार मरती हूँ जिससे पहले कि मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ूँ। प्रचार करने से पहले मैं 1000 बार मरती हूँ। तुम देखते हो ये सफ़ेद चोगा,
तुम देखते हो ये बेहतरीन लाइट्स, तुम देखते हो ये बड़े ऑडिटोरियम्स और हजारों लाखों लोग चंगे होते हुए, हील होते हुए, सेव्ड होते हुए, बचते हुए, यीशु मसीह में आते हुए, पर तुमने वो मौत नहीं देखी जो मैं 1000 बार रोज मरती हूँ। क्या शब्द हैं ये। मुझे उनके कुछ शब्द याद है जो कि मैंने उनकी बुक में पढ़े थे कि लॉर्ड इफ यू कैन यूज नथिंग देन हियर इट इज। अगर तू किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है तो मैं यहाँ हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये ले ले। यू नो, हमारी लाइफ में भी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ टाइम एक आता है जहाँ हमें लगता है हम पीछे छूट चुके हैं, जहाँ हम बोलते हैं हम पे कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, बट परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करना जानता है जो कुछ नहीं है। वाह। तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, वर्शिप, हालेलुया कोरस। The great auditorium, adore him and worship. John in the book of Revelation said, and I heard the voices of the redeemed of all ages as they worshiped him, crying, Hallelujah. Only a whisper, just a whisper. Look up and praise him. He's the one who forgives sins. He's the one who gives you security. He's the only one who can give peace of mind and peace of spirit. The great high priest, the very Son of the living God. Then sings my soul everywhere. Then sings my soul. My soul. Be still, God of all life. The God of Abraham is still our God. The God of Moses is still our God. But then sings my soul. That's thrilling. And the very angels get lost. Wow, that worship was truly heavenly. आपने अभी देखा कि कैथरीन कुलमन जैसे वर्शिप कर रही थी और बीच बीच में वो वचन को बोले जा रही थी, बीच बीच में कुछ आयतों को उठा के कोट कर रही थी और बीच बीच में वो परमेश्वर को संबोधित करती, उससे बात करती थी डायरेक्ट। क्यों? बिकॉज आई रियली बिलीव कि इट्स नॉट अ मैन मेड टेक्निक ऑफ हीलिंग।
चंगाई, उसकी उपस्थिति, चमत्कार कोई इंसान फेक नहीं कर सकता, कोई इंसान बना नहीं सकता। और जैसे कि वो बीच बीच में परमेश्वर से बात कर रही हैं और आयतों को लोगों के ऊपर बोल रही हैं, वो उस भीड़ को परमेश्वर की ओर डायरेक्ट कर रही है। वो उस जनसंख्या को, उस उन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर भेज रही है, इंस्टेड ऑफ हर कि लुक हाउ ग्रेट द वर्शिप म्यूजिक इज, और कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, या मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, या स्टेज कितना अच्छा है। एक्चुअली आजकल यही होता है, वर्शिप के नाम पर आजकल हाइप चल रही है, सरेंडर नहीं है। और हमने यहाँ पे एक सादगी देखी, सिंप्लिसिटी देखी, हेवनली वर्शिप देखी कि कैसे एक वर्शिपर, एक आराधक सीधा अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा लोगों को परमेश्वर की ओर डायरेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ देमसेल्फ। सो अगर जो कोई भी आप वर्शिप पर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी वर्शिप में हैं, तो आप ये टिप ज़रूर ले सकते हैं कि आप लोगों को परमेश्वर की ओर जोड़ना सीखें, इंस्टेड ऑफ कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, या स्टेज कितना अच्छा है, या लोग कितने आए हैं। What is this? This little 11-year-old boy had rheumatoid arthritis affecting his hips and his knees and his ankles, wrists, and this is his wheelchair. You mean this is the little boy's wheelchair? Honey, is this? He's so cute. This is the most beautiful son of Vegas, just for the healing of this youngster. How old are you, honey? 11. Tell the people how old you are. 11. What's your name? God. I want you to see this little wheelchair. Look, this little wheelchair made for a little 11-year-old boy. Does nothing hurt? Doesn't it hurt? You Wow. mean it doesn't hurt? Okay, take your wheelchair. You push it, honey. Go on. There he goes. This is holy ground. Oh, God love you. I want to see you riding your bike tomorrow. Tomorrow he'll be riding his bicycle. What a healing miracle it was. परमेश्वर ने क्या ही चमत्कार किया है। 11 साल का छोटा बच्चा पूरी तरह ही व्हीलचेयर में आता है और वहाँ से उसी व्हीलचेयर को उठाते हुए जाता है। मैंने ऐसी काउंटलेस टेस्टिमनीज इनकी मिनिस्ट्री से सुनी है, पढ़ी हैं, देखी हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, कैथरीन कुलमन की जो सर्विसेज होती थी 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले लोग लाइनें लगा के खड़े होते थे, ऑडिटोरियम्स पैक होते थे घंटों पहले, और उनकी जो सेकंड रो होती थी बाहर के लिए, वहाँ पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर्स और जितने भी प्रकार के बिस्तर्स होते थे, बेड होते थे, वो लोग लेके आते थे, उनमें मरीजों को लेके आते थे। और यहाँ तक कि जो कि पैरालाइज्ड होते थे और बीमार होते थे और या जो चल नहीं पाते थे, उनके लिए एक स्पेशल रो होती थी आगे की तरफ, उनकी तरफ उनके लिए प्रेयर करें। और एक किस्सा मुझे याद है, साल और नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट एक यूएस आर्मी में ऑफिसर थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी पीठ पर बंदूक लगी, गोली लगी, और जब वो अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में थे वहाँ पर उनके 12 ऑपरेशन हुए और वो चल नहीं पाए। उसके बाद जब वो आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे तो सिविल हॉस्पिटल में उनके शायद 7 या 8 ऑपरेशन और हुए। उनकी हालत बद से बदतर होती गई। और मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी, ये टेस्टिमनी मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को बचाता है। तो इन व्यक्ति की हालत बद से बदतर होती गई, इनको रातों को नींद नहीं आती थी और महीनों से सो ही नहीं थे। और एक बार फाइनल डायग्नोसिस कराने के बाद डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आपके पास अब समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 1.5 हफ्ता है। और ये व्यक्ति जो महीनों से परेशानी में था, पीड़ा में था, तो इस व्यक्ति ने अपने मन में बोला कि अगर मैं वहाँ जाते जाते मर भी जाऊँ
तो भी मैं जाके रहूंगा। मुझे हील होना है, वो इस व्यक्ति को विश्वास था, ऑफ कोर्स। एंड ये किसी प्रकार बस में जॉर्जिया से पिट्सबर्ग पहुंच गए। और अगर आप जॉर्जिया से पिट्सबर्ग का रास्ता देखोगे तो बहुत लंबा है। एक एवरेज व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। और ये तो अपने मरने की कगार पे थे, एकदम डेथ बेड में थे, अपने मरने के बिस्तर में थे, फिर भी ये गए। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उनकी सर्विसेज में जगह नहीं होती बैठने की। लोग घंटों पहले उनके गेट के आगे, दरवाजे के आगे, ऑडिटोरियम के दरवाजे के आगे लाइन बना के खड़े हो जाते थे। इन्हें सीट नहीं मिली, पर फिर भी ये अंदर जाने की कोशिश में लगे रहे। तो किसी ने इनको अपनी सीट दी। और मुझे वो उनकी बुक में ढंग से याद है कि जब ये अंदर गए और पूरी सर्विसेज में 4 घंटे की वो सर्विस थी, इन्होंने सोचा कि मिस कोलमन मेरे लिए दुआ करेंगी, मेरे ऊपर हाथ रखेंगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने विश्वास करते रहे। पर मिस कोलमन ने एक बार भी उनके लिए दुआ नहीं की, एक बार भी उनके ऊपर हाथ नहीं रखा। पर जब वो सर्विस से जा रहे थे और गेट की तरफ ही थे और दरवाजे की तरफ ही थे, उसी टाइम उनको फीलिंग आई, मैं चंगा हो गया हूं। उस मोमेंट में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मिस कोलमन के हाथ में नहीं था और किसी इंसान के हाथ में चंगाई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। तो ये स्टोरी मुझे काफी इंस्पायर करती है कि एक व्यक्ति जो अपनी डेथ बेड में था, अपने मौत के बिस्तर में था, किसी प्रकार हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा, उम्मीद में कि ये व्यक्ति मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा। पर परमेश्वर ने खुद उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा। I'm not afraid of Satan. I can use the same weapon on Satan that Jesus used. It is written. I can face Satan. I can face all the forces of hell and use the same weapon on him that Jesus did. I fear no man. But one fear, lest I grieve the Holy Spirit. Lest this anointing shall leave. Take not thy Holy Spirit from me. He can take everything that I've got. He can strip me of everything I've got. Leaving me but the clothing to cover my body, leaving me but the shoes on my feet, and I'm willing to go out there and live on bread and water the rest of my life, so help me God. I'll preach it if I have to preach it from the street corner. But take not thy Holy Spirit from me. वाह, ये पवित्र आत्मा के संग दोस्ती है, उसके संग निकटता का संबंध है। मैं किसी इंसान से नहीं डरती, या मैं किसी इंसान से नहीं डरता, मैं किसी शैतान से नहीं डरता। मुझे पता है शैतान से कैसे लड़ना है, लिखा है, इट इज रिटन। पर मुझे खौफ, मुझे भय सिर्फ एक बात का है कि मैं पवित्र आत्मा को शोकित ना करूं। यही चीज पौलुस ने कही थी, कि लेस्ट यू ग्रीव द होली स्पिरिट। यहां मिस कुलमन साफ कह रही हैं, मुझे बिना चप्पल के छोड़ दो सड़क पर, पूरी जिंदगी ब्रेड खिला दो, पानी पिला दो, पर मुझसे पवित्र आत्मा मत छीनो। मैं वो नहीं करना चाहती जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। हम वो ना करें जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो, जिससे उसका अभिषेक हमारे ऊपर से उठे। हम वो कुछ भी ना करें जिससे मेरी और उसकी दोस्ती के बीच में कोई रुकावट आ सके। यस, पवित्र आत्मा इज आवर फ्रेंड। पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है। हम अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को
उदास नहीं करना चाहते, दुखी नहीं करना चाहते, अपने दोस्तों को दुखी नहीं करना चाहते, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। क्या हम इतने सीरियस पवित्र आत्मा की दोस्ती के लिए भी हैं या नहीं? कि मुझसे कुछ भी ले लो, मुझे कहीं पे भी छोड़ दो, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी दोस्ती मुझसे मत लो। जैसा कि दाऊद ने भी कहा, डोंट टेक दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी, अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। वो जानता था उस नजदीकी को, वो जानता था उस दोस्ती को, उस गहराई को, जो कोई और ह्यूमन, कोई और इंसान नहीं जान पाया। मिस कुलमैन जानती थी उस दोस्ती को, जो आज की हमारी जनरेशन नहीं जानती, बहुत लोग नहीं जानते। क्या हम वो व्यक्ति हैं? मुझे कुछ भी दे दो, मुझसे कुछ भी ले लो, कोई भी इंसान ले लो, कोई भी चीज जो संसार की है ले लो, बट पवित्र आत्मा की वो प्रेशियस उपस्थिति, उसकी ग्लोरी और वो अभिषेक मुझे दे दो, मुझे यीशु दे दो और सब कुछ ले लो, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ है। आई होप दिस सेगमेंट ऑफ रिएक्टिंग ऑन मिस कैथरीन कुलमैन्स लाइफ ब्लेस्ड यू। मुझे आशा है कि आपको ये सेगमेंट उनकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स के हाईलाइट के ऊपर रिएक्ट करना आपको आशित लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।